Now discuss about the radioactivity and the very important topic of the nuclei. और इसमें हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे. डिसइंटीग्रेशन लॉ लेके चलेंगे, हाफ लाइफ डिस्कस करेंगे, एवरेज लाइफ टाइम डिस्कस करेंगे. इसके अलावा प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा बीटा गामा रेस. तो रेडियो एक्टिविटी इट इज द प्रोसेस इन विच a heavy element disintegrate in the form of alpha beta gamma, known as radioactivity. Clear? The phenomena of disintegration of certain heavy elements in the form of alpha beta gamma, known as radioactivity. It's the natural process. No effect of the external force, no effect of the temperature, no effect of the pressure. It's a natural process. That is known as radioactivity. Clear? The phenomena of disintegration of certain heavy elements in the form of alpha beta gamma, known as radioactivity. So we discuss about the properties of alpha rays, gamma rays and beta rays. The properties of alpha. Alpha means helium 2He4. So alpha particle, these are just like a helium, mass 4 times of the proton and charge 2 times of the proton, 2He4. These are positively charged particles. These are positively charged particles. Now, they are affected by electric as well as magnetic field because they are positively charged particles. So they are affected by electric as well as magnetic field. Their velocity is quite large. Their velocity is quite large. Not equal to velocity of light, but quite large. Very high ionization power due to their heavy mass and velocity. They are having very high ionization power. मतलब एक अल्फा पार्टिकल एब्जॉर्ब होने से पहले थाउजेंड्स आयंस को प्रोड्यूस कर देता है ड्यू टू वेरी हाई आयोनाइजेशन पावर. और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनका मास ज्यादा है, वेलोसिटी भी काफी है. दैट्स वाई. नाउ इफ सपोज देयर इज अल्फा डिके, अगर अल्फा डिके होता है तो एटॉमिक नंबर रिड्यूस्ड बाय 2 एंड मास नंबर रिड्यूस्ड बाय 4. Atomic number reduced by 2 and mass number reduced by 4. Clear? So these are the properties of alpha particles. Clear? Now discuss about the properties of beta. Properties of beta. These are negatively charged particles. These are negatively charged particles. These are also affected by electric as well as magnetic field. Their ionization power is low if we compare with the alpha particles. Their penetrating power is quite large if we compare with the alpha particles.
ठीक है, जो पेनिट्रेटिंग पावर होगी बीटा की वो अल्फा से कहीं ज़्यादा होगी, 100 टाइम्स ग्रेटर देन द अल्फा पार्टिकल्स. They moves very close to the velocity of light, near about 90% of velocity of light, 33% to 90% of velocity of light. So they moves very fast. And if beta decay, these are the fast, these are just like a fast moving electrons. These are just like a fast moving electrons. So if beta decay, no effect on the mass number, while atomic number increased by 1. Atomic number reduced by 1, no effect on the mass number. Clear? Now discuss about the properties of gamma. Properties of gamma. These are neutral. Gamma rays are neutral. No effect of the electric as well as magnetic field because these are neutral. They move with velocity of light. They move with velocity of light. These are the part of electromagnetic spectrum. These are the part of electromagnetic spectrum. Very high penetrating power. Very high penetrating power. 100 times of beta and 10,000 times of alpha. Very high penetrating power. Low ionization power. Low ionization power. So these are the properties of gamma rays. Clear? Now discuss about the laws of radioactivity. In the natural process, certain heavy elements decay in the form of alpha, beta, gamma. In the natural process, no effect of the external pressure and temperature. During decay, you know decay of alpha, beta. तो जब decay हो रहा होगा तो एट ए टाइम केवल एक ही पार्टिकल निकलेगा, अल्फा निकलेगा, देन ओनली वन अल्फा. ऐसे नहीं कि सारे अल्फा एक साथ निकल गए. अल्फा बीटा साथ साथ नहीं निकलेंगे. अल्फा देन ओनली वन अल्फा, बीटा देन ओनली वन बीटा. If alpha decay, atomic number reduced by 2 and mass number reduced by 4. If beta decay, atomic number increased by 1, no effect on the mass number. And fourth one is also known as decay law. Or disintegration law. और डिसइंटीग्रेशन लॉ, डिके लॉ और डिसइंटीग्रेशन लॉ, और ये हम लोग अब डिस्कस करते हैं. तो अकॉर्डिंग टू डिके लॉ, rate of disintegration of atoms directly proportional to
undecayed atom present at that instant. Rate of disintegration of atoms directly proportional to undecayed atom present at that instant, means minus dn upon dt is directly proportional to n. माइनस n ये इंडिकेट कर रहा है कि डिके हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है. रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ एटम्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनडिकेड एटम प्रेजेंट एट दैट इंस्टेंट. ठीक. माइनस डी एन अपॉन डी टी इक्वल्स टू लैम्डा एन, वेयर लैम्डा इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट known as decay constant. इसको अभी डिफाइन करेंगे हम लोग. दैट इज नोन एज डिके कांस्टेंट. और डी एन अपॉन डी टी इक्वल्स टू माइनस लैम्डा एन और डी एन अपॉन एन इक्वल्स टू माइनस लैम्डा डी टी. Integrating on both sides. ये log en हो जाएगा माइनस लैम्डा टी प्लस सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट. When t goes to 0, undecayed atom was n naught और t टाइम बाद दैट इज n. जब t goes to 0 पुट करेंगे यहां पर log e n naught इक्वल्स टू 0 प्लस c, सो c इक्वल्स टू log e n naught. सेकेंड में वैल्यू पुट कर दो, सो log e n इक्वल्स टू माइनस लैम्डा टी प्लस log e n naught. log e n माइनस log e n naught इक्वल्स टू माइनस लैम्डा टी. log a माइनस log b होता है log a अपॉन b, सो log e n अपॉन n naught इक्वल्स टू माइनस लैम्डा टी. एंटी लॉग ले लो, n अपॉन n naught इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस लैम्डा टी और n इक्वल्स टू n naught e टू द पावर माइनस लैम्डा टी. एक ये फॉर्मूला बनके तैयार हो गया. और यहां से हम लोग डिके कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं. कई बार यहां तक पूछा जाता है एग्जाम में, एंड ऑल्सो डिफाइन डिके कांस्टेंट. तो कैसे करेंगे? कैसे डिफाइन करेंगे? डिके कांस्टेंट में बी डिफाइंड एज it is the reciprocal of the time at which undecayed atom present at that instant is equals to 1 upon exponential times of total undecayed atom present initially. फिर से जानो, decay constant may be defined as it is the reciprocal of the time at which undecayed atom present at that instant is equal to 1 upon exponential times of total undecayed atom present initially. तो यहां से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं. नाउ डिस्कस अबाउट द हाफ लाइफ. The time at which undecayed atom present at that instant just become half of its initial value, known as half lifetime. The time at which undecayed atom present at that instant just become half of its initial value
नॉन एज हाफ लाइफ टाइम, मतलब n नॉट बाई 2 हो जाए तब t कैपिटल T कहलाएगा। थर्ड क्वेश्चन पे आइए, n इक्वल्स टू n नॉट e⁻ माइनस लैम्डा टी पर एन जे क्या लिखेंगे हम लोग, n नॉट बाई 2। बेस 10 में कन्वर्ट कर दिया हमने, ई को 10 में कन्वर्ट कर दिया तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो टी इक्वल्स टू 0.6931 अपॉन लैम्डा। ये एक रिलेशन आ गया हाफ लाइफ एंड डिके कांस्टेंट के बीच में। टी इक्वल्स टू 0.6931 अपॉन लैम्डा, ये एक रिलेशन आ गया हाफ लाइफ एंड डिके कांस्टेंट के बीच में, 0.6931 अपॉन लैम्डा। क्लियर? और भी एक फॉर्मूला बन जाता है एक्टिविटी के तौर पर, n अपॉन n नॉट इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पे पावर n, n upon n naught equals to 1 upon 2 per power n, where small n is the number of half lives, t by t। स्मॉल t क्या है यहां पर, टोटल लाइफ टाइम, कैपिटल T क्या है, हाफ लाइफ टाइम, स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ हाफ लाइव्स। तो n अपॉन n नॉट इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पे पावर n, ये भी एक फॉर्मूला बन जाता है, इससे भी हम लोग हाफ लाइफ वगैरह निकाल सकते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया 0.6931 अपॉन लैम्डा, और एक हो गया n अपॉन n नॉट इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पे पावर n। क्लियर? और अब लेके चल रहे हैं हम लोग एवरेज लाइफ टाइम, एवरेज लाइफ टाइम। एवरेज लाइफ टाइम मीन्स टोटल लाइफ टाइम निकालो एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इनिशियली। तो क्या बनेगा, एवरेज लाइफ टाइम, टोटल लाइफ टाइम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इनिशियली, वहां से मिलेगा आपको एवरेज लाइफ टाइम। ठीक, चलो इसका डेरिवेशन निकालते। जब टाइम 0 था, अनडिकेड एटम कितने थे, n नॉट। आफ्टर टाइम t it become n. In time interval t plus dt, further dn atom disintegrate, मतलब dn atom disintegrate within the time interval of t2 t plus dt. dn atom further disintegrate within the time limits of t2 t plus dt. Now total lifetime of dn atoms, it's tdn. Now total lifetime of all atoms, integrate it, zero to n naught tdt, average lifetime,
एवरेज लाइफ टाइम ऑफ ऑल एटम्स। डीएन को चेंज करो। फर्स्ट इक्वेशन से आप देखें तो डीएन क्या मिलेगा, माइनस लैम्डा एन डी टी, माइनस लैम्डा एन डी टी। एन को भी चेंज कर दूं, एन क्या है, एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। एन की वैल्यू लगा दी, क्या है, एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। तो डी एन इक्वल्स टू माइनस लैम्डा एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी डी टी किसकी जगह लिखेंगे, डी एन की जगह। तो टाउ इक्वल्स टू 1 अपॉन एन नॉट माइनस लैम्डा एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी डी टी। और अब लिमिट चेंज हो जाएंगी, ये डी एन के टर्म्स में थी, अब हमें डी टी के टर्म्स में लिमिट लिखनी पड़ेगी। 0 टू एन नॉट है, 0 कोई भी रेडियोएक्टिव एलिमेंट 0 कब होगा, इनफाइनाइट टाइम में। और एन नॉट कब था, जब टाइम 0 था। क्लियर। और डी इक्वल्स टू एन नॉट से एन नॉट कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी, टी भी चल रहा है यहां पर, और अब लिमिट्स इंटरचेंज हो जाएंगे, हमने माइनस साइन हटा दिया है, 0 टू इन्फिनिटी। डीएन की वैल्यू लगाई थी हमने यहां पर, तो टी पहले से था, तो टाउ इक्वल्स टू लैम्डा 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी डी टी इंटू टी। और अब इसको सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। तो आप यहां डायरेक्ट लिख सकते हो, एग्जाम में आपको पूरे नंबर मिलेंगे, लेकिन लिखना पड़ेगा एज वी नो दैट फ्रॉम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो मिलेगा टाउ इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्डा। लेकिन ये आपको लिखना पड़ेगा कि एज वी नो दैट फ्रॉम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, टाउ इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्डा। तो हाफ लाइफ और एवरेज लाइफ में भी एक रिलेशन है, देखो क्या बनेगा वो। अब देखो टाउ इक्वल्स टू टी की वैल्यू लगा दो, या लैम्डा की वैल्यू लगा दो यहां पर। लैम्डा यहां क्या मिलेगा, 0.6931 अपॉन टी। तो पॉइंट यानी कि टी अपॉन 0.6931, और टाउ इक्वल्स टू 1.44 टी, यानी आपको मिल गया टाउ इक्वल्स टू 1.44 टी। इट इज द रिलेशन बिटवीन टाउ एंड टी। टाउ इक्वल्स टू यानी एवरेज लाइफ टाइम इक्वल्स टू 1.44 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ। दोबारा देख लो सारा, हम लोग लेके चल रहे हैं डिसइंटीग्रेशन लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, rate of disintegration of atoms directly proportional to undecayed atom present at that instant. So minus dn upon dt equals to lambda n, where lambda is the decay constant जो हम लोग डिफाइन करेंगे अभी। तो dn upon dt हो जाएगा माइनस लैम्डा इंटू एन, और dn upon n हो जाएगा माइनस लैम्डा dt। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, dx अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन log e x होता है, तो dn अपॉन n का इंटीग्रेशन हो जाएगा log e n, बेस e लेके चलना है, dt का t हो जाएगा, और c इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट। जब टाइम 0 था तो अनडिकेड एटम क्या थे, n नॉट। जब t 0 पुट करेंगे तो यहां क्या लिखेंगे, n नॉट। तो c की वैल्यू आ गई log e n नॉट। ये सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो, तो c की वैल्यू हमने सेकंड इक्वेशन में पुट कर दी। log a माइनस log b होता है log a अपॉन b, एंटी लॉग ले लिया,
तो e टू पावर माइनस लेमडा टी, तो n इक्वल्स टू n नॉट e टू द पावर माइनस लेमडा टी मिल गया। अब यहां से हम लोग डिफाइन करेंगे डिके कांस्टेंट। अगर हम लेमडा की जगह 1/t लिख दें तो e पावर माइनस 1 आएगा, या n इक्वल्स टू n नॉट बाई ई। तो कैसे डिफाइन करेंगे? डिके कांस्टेंट में बी डिफाइंड एज it is the reciprocal of the time at which undecayed atom present at that instant is equals to 1 upon exponential times of total undecayed atom present initially. So n equals to n naught by e. और ये आपको यहां से डेफिनेशन मिल गई किसकी? डिके कांस्टेंट की। और अब लेके चल रहे हैं हम लोग हाफ लाइफ टाइम। The time at which undecayed atom present at that instant just become half of its initial value, known as half life time. तो n इक्वल्स टू क्या हो जाना चाहिए? n नॉट बाई 2। तो स्मॉल टी की जगह क्या लिखेंगे हम लोग? कैपिटल टी, वेयर कैपिटल टी इज द हाफ लाइफ टाइम। तो n इक्वल्स टू n नॉट ई टू द पावर माइनस लेमडा टी, ये फॉर्मूला है थर्ड। यहां पर n की जगह क्या लिख दिया मैंने? n नॉट बाई 2। तो स्मॉल टी की जगह क्या लिखेंगे? कैपिटल टी। n नॉट से n नॉट कैंसिल हो गया, 2 लेंगे तो माइनस n हट जाएगा यहां पर। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग ई 2 कस टू लेमडा टी हो गया। बेस ई पर ई की वैल्यू 1 होती है, इसलिए लेमडा टी आ गया। बेस ई को 10 में कन्वर्ट कर दिया, तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना होता है। लॉग बेस 10 पर 2 की वैल्यू होती है 0.3010। उसको सॉल्व करेंगे तो 0.6931 अपॉन लेमडा आ गया। तो ये एक रिलेशन आ गया हाफ लाइफ टाइम एंड डिके कांस्टेंट के बीच में, 0.6931 अपॉन लेमडा। नाउ एक और फॉर्मूला बन जाता है हाफ लाइफ के लिए एक्टिविटी वाला, n अपॉन n नॉट इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पे पावर n, वेयर n इज द नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। तो स्मॉल n क्या होगा? स्मॉल t बाई कैपिटल T, और स्मॉल t क्या है? टोटल लाइफ टाइम। कैपिटल D क्या है? हाफ लाइफ टाइम। तो ये एक फॉर्मूला बन गया आपका, क्लियर नाउ। और अब लेके चल रहे हैं हम लोग एवरेज लाइफ टाइम, अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक। इफ टोटल लाइफ टाइम्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इनिशियली, तो आपको एवरेज लाइफ टाइम मिल जाएगा। जब टाइम 0 था तो अनडिकेड एटम कितने थे? n नॉट। टी टाइम बाद कितने हो गए? n। फर्दर dn एटम डिसइंटीग्रेट हो गए विद इन द टाइम इंटरवल ऑफ t से t प्लस dt। नाउ टोटल लाइफ टाइम ऑफ dn एटम्स क्या हुआ? tdn। टोटल लाइफ टाइम ऑफ ऑल एटम्स इंटीग्रेटेड, tdn 0 to n नॉट। एवरेज लाइफ टाइम ऑफ ऑल एटम्स, तो टोटल लाइफ टाइम टोटल नंबर ऑफ एटम से डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दिया। हमें dn को रिप्लेस करना है। आपको पता है फर्स्ट इक्वेशन से dn क्या मिलेगा? माइनस लेमडा n dt। n की वैल्यू लगा दो थर्ड इक्वेशन से, क्या है? n नॉट e टू द पावर माइनस लेमडा t। ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू यहां पर पुट कर दो। क्योंकि ये लिमिट dn के टर्म्स में थी, अब हमें dt के टर्म्स में लिमिट्स लिखनी है। कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट जीरो होने में इनफाइनाइट टाइम लेता है, क्योंकि हाफ का हाफ होता रहता है। और n नॉट कब था? जब टाइम 0 था, तो इन्फिनिटी टू 0। माइनस साइन हटाना है तो लिमिट्स इंटरचेंज कर दो। तो मिला आपको अब लैम्डा बाहर आ गया, 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस लैम्डा t इंटू dt। फिर यहां पे आप लिखेंगे एज वी नो दैट फ्रॉम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं एज वी नो दैट फ्रॉम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स टाउ गोस टू 1 अपॉन लैम्डा और टाउ गोस टू 1.44t। ये एक रिलेशन आ गया हाफ लाइफ एंड एवरेज लाइफ टाइम में।
ठीक। ना अब लेके चल रहे हैं हम लोग यूनिट्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी, यूनिट्स लेके चल रहे हैं हम लोग। तो एक होती है क्यूरी, और 1 क्यूरी 3.7 10 to the power 10 डिके पर सेकेंड। एक क्यूरी यूनिट होती है इसकी, और ये किसके बराबर होती है? 3.7 इंटू 10 to the power 10 डिके पर सेकेंड। एक होती है बैकरोल, बैकरोल इट इज 1 डिके पर सेकेंड। It is the SI unit. It is the SI unit of radioactivity. Becquerel 1 decays per second. एक होती है रदरफोर्ड। One is the Rutherford and it is 10 to the power 6. Ten power 6 decay per second. These are the units of radioactivity. 1 Curie 3.7 10 to the power 10 decays per second. Becquerel 1 decays per second, and Rutherford 10 to the power 6 decays per second. These are the units of radioactivity. Clear?